Today, in the class of the modern machining method, which is given in your syllabus of the Unit 4, Unit 5 and 6, we will cover all the modern machining method, in which we cover about the introduction, objectives, working principle of energy, non-conventional machining process, electric discharge machining, wire cut electric discharge machining, ultrasonic machining, chemical machining process, electrochemical machining process, laser beam machining process, plasma arc machining process, and the summary. Here we will discuss about the working principle, applications, advantage, and different process parameters of the above methodology. In this case, of the modern machining methods are also named as the non-conventional machining method. These methods form a group of process which removes excess material by various techniques involving mechanical, thermal, electrical, chemical energy, or combination of these energy. There is no cutting of the metal with the help of the metallic tool having sharp cutting edge. यहां पर मेटालिक टूल नहीं होता है, मेटल कटिंग वहां पर नहीं होता है. यहाँ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द टेक्निक, मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी और इसके कॉम्बिनेशन से मटेरियल को हटाया जाता है. द मेजर रीजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ द मॉडर्न मशीनिंग मेथड्स आर गिवन बिलो. नीड ऑफ द मशीन न्यू डेवलप्ड मेटल and non-metals having some special property like strength. नए मटेरियल का आना और बहुत हार्डन मटेरियल को मशीन करना वो ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड से संभव नहीं था. हाई हार्डनेस एंड हाई टफनेस के वजह से मॉडर्न मशीनिंग मेथड की से जो है वो आपको संभव नहीं था. इसीलिए आपको नॉन ट्रेडिशनल, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आपको आया गया. ए मटेरियल पॉसिंग द अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टी आर डिफिकल्ट टू मशीन बाय द कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड. कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से टंगस्टन कार्बाइड वगैरह जिसकी हाई हार्डनेस है, हाई टफनेस है, वो मशीन नहीं हो सकता था. समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस complex part geometry that cannot be produced by the conventional machining technique. कॉम्प्लेक्स पार्ट जो कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से आपको संभव नहीं है, जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जो कि गुड क्वालिटी और गुड सरफेस फिनिश प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी. देयर कैन बी ए वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मेथड्स. ये आपको ऊपर दिखाया गया. ऑब्जेक्टिव क्या है? The introduction of the modern machining methods and their difference with the conventional machining methods. Different classification criteria of the modern machining methods and their classification. Working principle, process details, application, advantage and disadvantage जो आपको सिलेबस में आपको दिया गया है, ये सारा आपको इस चैप्टर में सभी प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया है. वर्किंग प्रिंसिपल स्टडी करना है, प्रोसेस डिटेल्स आपको स्टडी करना है, एप्लीकेशंस करना है, एडवांटेज करना है और डिसएडवांटेज करना है. तो ये सारे चीजें आपको, ये सारे प्रोसेस के बारे में इसमें आपको दिया हुआ है. द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग एनर्जी. द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग इज द बेस ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी यूज टू रिमूव द मटेरियल. क्लासिफिकेशन to remove the material classification along with the principle of working is described below. Use of the mechanical energy. Mechanical energy is used. Mechanical energy is used for removing metal from the workpiece. In this process, cutting tool with the sharp edge is not used, but the material is removed by the abrasion action of the high velocity stream of the hard and tiny abrasive particle. है ना. इसमें मेटल को जो है शार्प एज से नहीं हटाया जाता है, बल्कि एब्रेसिव एक्शन जिससे कि जो एब्रेसिव पार्टिकल से उसको हटाया जाता है. तो इसमें आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग आ जाएगा, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग आ जाएगा, वाटर जेट मशीनिंग आ जाएगा. ये सारे आपको इसमें आपको इस प्रोसेस में आ जाएगा.
ये सारे इस प्रोसेस में आपको आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, in this category of the non-traditional machining, electrical energy is used in the form of the electrochemical energy or electrical heat energy. Electrical heat energy, and electrical energy is to the erode the material or to melt or vaporize the respectively. Electrochemical machining, electroplating, electrodischarge machining are example of in this प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही आपको वर्कपीस मटेरियल आपको हटाया जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में भी आपको इसी से हटाया जाता है। यूज ऑफ द थर्मल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हीट इज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द जनरेटेड थर्मल एनर्जी इज फोकस्ड to a very small portion of the workpiece. This heat is utilized in melting and evaporating of the metal. The example on this principle is the electric discharge machining. And the last one is the chemical energy. According to this principle, work chemicals are used to erode the material from the workpiece. इसमें आपको केमिकल्स यूज किया जाता है आपको वर्कपीस मटेरियल को हटाने के लिए। एग्जांपल ऑफ दिस मशीनिंग आर द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। द सेम प्रिंसिपल कैन बी also applied in the reserve way in process of the electrochemical plating. Non-conventional machining process, इसमें आपको जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, दिस कैन बी मोर बी क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस व्हिच इज मैकेनिज्म ऑफ द मेटल रिमूवल। एब्रेशन एंड शियर, एब्रेशन एंड शियर से हटाया जाएगा, केमिकल एब्लेशन एंड आयनिक डिस्प्लोशन से हटाया जाएगा, वेपोराइजेशन ऑफ द शार्क इरोजन से हटाया जाएगा। ये सारे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में जो मेटल रिमूवर होते हैं उसके यही आपके प्रिंसिपल है। आपको इसमें कोई भी मेटालिक कटिंग टूल, आपको शार्प एज का यूज नहीं किया जाता है। तो एब्रेशन एंड शियर से when small and hard metal materials are made vibrating against the workpiece to be machined, the material is removed by the shear action and abrasion. This phenomena takes place in the case of the ultrasonic machining. अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में आपको एब्रेशन एंड शियर से आपको हटाया जाता है। chemical ablation and the ionic dissolution. This is the dissolution of the workpiece material into the electrolytic solution chemical which take place atom by atom. This happen in case of the electrochemical machining. Takes place in case of the electrochemical machining. Vaporization and the spore corrosion. Concentrated heat is focused at a point of the workpiece by the electric spark which melts and evaporates the workpiece material like the electric discharge machining and the laser beam machining. तो इसमें आपको जो मेटल हटाया जाता है, किस तरह हटाया जाता है, वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में ये 3 मेथड है मेटल को हटाने का। इसमें कोई टूल यूज नहीं किया जाता है, एब्रेशन एंड शियर से हटाया जाता है, केमिकल एब्लेशन से हटाया जाता है, वेपोराइजेशन ऑफ द शार्क इरोजन से हटाया जाता है। तो इसमें आपको एब्रेसिव जेट में मशीनिंग का जो आपको सिलेबस दिया हुआ था उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, it is also known as the spark erosion machining or spark machining. Material of the workpiece removed due to the erosion caused by the electric spark. Electric spark आपको किया जाता है और उसी से आपको दिखाया जाता है। ये आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। सर अटेंडेंस होगी क्या? नहीं, अब अटेंडेंस नहीं हुई है, अटेंडेंस नहीं हुई है, अटेंडेंस अभी ले लेंगे। तो ठीक है सर। हाँ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का ये प्रोसेस आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर टूल रहता है, यहाँ पर वर्कपीस रहता है और दोनों को बीच में आयोनाइज डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन रहता है। दोनों के बीच में वर्कपीस पॉजिटिव होता है, टूल जो है निगेटिव होता है और दोनों के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ से मेटल आपको हटाया जाता है ना। ये आपको मेटल रिमूविंग प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया गया है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का फिगर आपको यहाँ पर बताया गया है। टूल इसमें आपको यहाँ पर वर्कपीस है, ये आपको टूल है, आपको यहाँ पर आपको डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन है और ये आपको वर्कपीस टर्मिनल पॉजिटिव रहता है आपको और डायरेक्शन ऑफ द फीड दिया जाता है। ये रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट है, यहाँ पर गैप मेंटेन किया जाता है
तो ये टूल और वर्कपीस के बीच में गियर बॉक्स, स्विच और डीसी सप्लाई दिया जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का आपको कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल आपको फिगर में आपको बताया गया है ना। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग. Electric discharge machining process is carried out in presence of the dielectric fluid which creates path for the discharge. When potential difference created across the two surfaces of the dielectric fluid, it gets ionized. An electric spark discharge is generated across the two terminals. The potential difference is developed by pulsating direct current power supply connected across the two terminals. One of the terminal is positive terminal given to the workpiece and tool is made negative. 2/3 of the total heat generated is generated at the positive terminal. So workpiece is generally given positive polarity. The discharge develops at the location where two terminals are very close. So tools help in focusing the discharge of the intensity generated heat at the point of the metal removal. है ना, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो इसमें आपको बेस होता है, बेस जो है एक कंटेनर होगा जो कि आपको नॉन कंडक्टिंग होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, इज यूज्ड फॉर कैरिंग द ईडीएम। ये बेस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। द कंटेनर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन से ये आपको फिल कर दिया जाता है। ए बेस ऑफ द कीप वर्कपीस इंस्टॉल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। द बेस इज मेड बाय द कंडक्टिंग मटेरियल एंड गिव द पॉजिटिव पोलैरिटी। यहाँ पर पॉजिटिव पोलरिटी आपको दिया जाता है। टूल इज गिवन नेगेटिव पोलरिटी, टूल को जो है नेगेटिव पोलरिटी दिया जाता है। इट वाज मेड ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल लाइक ब्रास, कॉपर और टंगस्टन। ये ब्रास, कॉपर और टंगस्टन का बना होता है। द टूल मटेरियल सेलेक्टेड शुड बी इजी टू मशीन, हाई पावर रेसिस्टेंट। टूल इज मेड स्लाइटली अंडरसाइज और इनसाइड द मशीनिंग और ओवरसाइज कट द मशीनिंग। जिस तरह का यहाँ पर टूल का शेप होगा उसी तरह का मशीनिंग जो है आपको वर्कपीस में होगा। ये आपको टूल का आपको शेप जिस तरह का रहेगा उसी तरह का मशीनिंग आपको यहां पर आपको होगा, है ना। तो ये आपको टूल हो गया। डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन इज ए लिक्विड विच शुड बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड टू मेन फंक्शन। फर्स्ट इज ड्राइव द चिप्स एंड प्रिवेंट्स द स्टिकिंग ऑफ द वर्कपीस टू द टूल। It enhances the intensity of the discharge after getting ionized and so calculated metal removal rate. पावर सप्लाई आपको डीसी पावर सप्लाई इसमें यूज होगा। 50 वोल्ट से 450 वोल्ट के बीच में अप्लाई किया जाएगा। Due to ionization of the dielectric solution and electric breakdown occurs, the electric discharge so caused directly impinges on the surface of the workpiece. It takes only a few microseconds to complete the cycle and remove the material. ये आपको पावर सप्लाई आपको बता रहा है। दूसरा टूल फीड मैकेनिज्म यहां पर आपको दिखाया गया है। इन केस ऑफ द ईडीएम फीडिंग एंड द टूल मींस कंट्रोलिंग द गैप बिटवीन द वर्कपीस एंड द टूल। दिस गैप इज मेंटेन्ड एंड कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द सर्वो मैकेनिज्म। यहां पर आपको फिगर में आपको सर्वो मैकेनिज्म आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। सर्वो मैकेनिज्म रैक एंड पिनियन का आपको टूल फीड मैकेनिज्म आपको दिखाया गया है। To maintain a constant gap throughout the operation, tool is moved towards the machining zone very slowly. The movement speed is towards the machining zone is help to gear a rack and pinion arrangement. The servo system senses the change in the gap due to the metal removal and immediately corrects it by moving the tool accordingly. The spark gap normally varies from the 0.05 mm to the 0.50 mm. Workpiece and the machine geometry. The important point for workpiece is that any material which is electric conductor can be machined throughout the process, whatever be the process of the same. The geometry which is to be machined into the workpiece decide the shape and size of the tool. है ना। ये आपको वर्किंग पीसफुल के बारे में, आपको वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का आपको वर्किंग पीसफुल के बारे में वो आपको बता रहा है। ये फिगर आपको एग्जाम में आपको बनाना होता है और उसको आपको डिस्क्राइब करना होता है ना। ये आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है। एप्लीकेशन, दिस प्रोसेस इज हाईली इकोनॉमिकल। ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रोसेस है फॉर मशीनिंग ऑफ द वेरी हार्ड मेटल। हार्ड मेटल का प्रोसेस के लिए ये आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रोसेस है। एज टूल वियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ द वर्कपीस मटेरियल,
है ना। टूल वियर इसमें आपको इंडिपेंडेंट है। इट इज यूज वेरी यूजफुल इन टूल मैन्युफैक्चरिंग। टूल और डाई बनाने के लिए इस प्रोसेस का जो है यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ब्रॉच मेकिंग। ब्रॉच जो ब्रॉच मशीन ब्रॉच होते हैं ब्रॉचिंग ऑपरेशन में उसके बनाए जाते हैं। मेकिंग होल विथ स्ट्रेट और कर्व्ड एक्सिस। स्ट्रेट और कर्व्ड एक्सिस का होल इससे आपको बनाया जाता है। एंड फॉर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड कैविटी विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। कॉम्प्लिकेटेड कैविटी जो कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से नहीं बनता है वो यहां पर आपको बनाया जाता है। ईडीएम इज वाइडली यूज्ड फॉर द डाई मेकिंग। डाई मेकिंग के काम में आपको ईडीएम का यूज होता है। उसके कॉम्प्लेक्स कैविटी डाई के कॉम्प्लेक्स कैविटी को यहां से बनाया जाता है। हाउएवर इट इज कैपेबल टू डू ऑल ऑपरेशन दैट कैन बी डन बाय द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, है ना। ये कोई भी आपको मशीनिंग जो कन्वेंशनल मशीनिंग से हो सकता है वो सभी का यहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग से आपको किया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ द ईडीएम, the process is very much economical for machining very hard material, maintains high degree of the dimensional accuracy, so it is recommended for the tool and die making operation. Complicated geometry can be produced which are very difficult and otherwise. Highly delicate section and weak material can also be processed without any risk of their distortion, because in this process tool never applies direct pressure on the workpiece. Fine holes can be drilled easily and accurately. Appreciably high value of metal removal rate can be achieved as compared to other non-conventional machining process. These are the advantages of the EDM. Disadvantages and limitations of the EDM. What are the limitations of the EDMs are there? These are also known as the limitations, not the disadvantage of the material, where the EDM cannot be applied. This process cannot be applied on very large size workpiece, such as a size of workpiece constructed by the size of the setup. ये आपको यहाँ पर जो सेटअप दिखाया गया है उसी सेटअप के रूप में ही आपको मशीनिंग किया जा सकता है। वेरी लार्ज साइज वर्कपीस पे आपको मशीनिंग नहीं किया सकता। इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बाय द ईडीएम। इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को यहां पर आपको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर एट द मशीनिंग जोन, देयर आर चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ वर्कपीस इन केस ऑफ दिस सेक्शन। डिस्टॉर्शन का आपको चांसेस रहता है। ईडीएम प्रोसेस इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर ये ईडीएम नहीं बनाता है, आपको राउंड सरफेस आपको ये प्रोड्यूस करता है। मेटल रिमूवल रेट अचीव्ड इन ईडीएम प्रोसेस इज कंसिडरेबली लोअर देन द मेटल रिमूवल रेट इन केस ऑफ द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। इसमें मेटल रिमूवल रेट आपको धीरे धीरे होता है, इसीलिए ये जो है मेटल रिमूवल रेट और कटिंग रेट आपको स्लो है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, है ना। तो ये सारे आपको ईडीएम प्रोसेस के डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, एडवांटेज, एप्लीकेशंस और द वर्किंग प्रिंसिपल आपको क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का, आपको पूरा डिटेल आपको यहां पर बता दिया गया। क्या क्या आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस है वो आपको यहां पर आपको क्लियर कर दिया गया। दूसरा है वायर कट ईडीएम। वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ये भी जो है वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इसमें जो है आपको टूल के जगह पे वायर रहता है। यहाँ फिगर में देखिए वहां पर टूल था, यहाँ पर जो है वायर रहेगा, वायर पास करेगा और वायर से जो है आपको जहां जहां वायर पास करेगा वो आपको वहां पर आपको कटिंग होगा, इसीलिए इसको वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग बोलते हैं। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग दैट यूजेज ए स्मॉल डायमीटर ऑफ द वायर एज ए कटिंग टूल ऑन द वर्कपीस। Working a principle of the wire cut electric discharge machining is same as that of the electric discharge machining process. Process details of the wire cut electric discharge machining. Process details are almost similar to the electric discharge machining with the slight difference. The details of the process are indicated by the line diagram in the figure. ये आपको लाइन डायग्राम से यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपको वर्कपीस है, ये वायर है, वायर आपको टूल के रूप में काम करता है, जहां जहां वायर गुजरेगा वहां वहां आपको कटिंग होगा। टूल डिटेल्स, द टूल यूज्ड इन द वायर कट ईडीएम प्रोसेस इज ए स्मॉल डायमीटर वायर एज ए इलेक्ट्रोड टू कट नैरो कर्व इन द वर्कपीस।
During the process of the cutting, the wire is continuously advanced between a supply spool and the wire collector. This continuous feeding of the wire make machine geometry intensive to the distortion of the tool due to its erosion. Material of the wire can be brass, copper, tungsten, or any other suitable material to make the EDM tool. Normally, wire diameters are range from this between them and the width of the curve. इसका प्रिंसिपल आपको ईडीएम प्रोसेस जो प्रिंसिपल बताया गया था वही आपको प्रिंसिपल है. ये आपको वायर कट ईडीएम का प्रोसेस का फिगर आपको यहां पर आपको दिया हुआ है. वायर सप्लाई आपको स्पूल रखा गया है, डायरेक्ट्रिक यहां पर आपको सप्लाई किया जाता है. ये आपको वर्कपीस है, ये कंटिन्यूअसली फीड वायर है ना. ये वायर कलेक्टर है ना. The tool feed mechanism क्या है? Two type of the movement are generally given to the total wire. One is the continuous feed from the wire supply spool to the wire collector. Other is the movement of the whole wire feeding system and the wire along the curve to be cut into the workpiece. Both movements are complicated with the ultra accuracy and predetermined speed with the help of the numerical control mechanism. उसके द्वारा आपको किया जाता है. Dielectric fluid and the spray mechanism. Like EDM process, dielectric fluid is continuously sprayed to the machining zone. This fluid is applied to the nozzles directed at the tool workpiece interface, or the workpiece is submerged in the dielectric fluid container. Rest of the process detail in case of the wire cut EDM process are same as that in the case of the EDM process. सारा process आपको EDM process के आपको बराबर है. Applications of the wire cut EDM. Wire cut EDM is similar to the hand saw operation in application with good precision. It is used to make narrow curve with the sharp corner. It does not impose any force to the workpiece, so huge and very duplicated and the thin workpiece. It is considered ideal for making components for the stamping die. It is used to make intricate shape in punch, dies and other tools. Advantage of the wire cut EDM. These are the advantages of the wire cut EDM process. Accuracy and precision of dimension are of the very good quality. No force is experienced by the workpiece. इसमें वर्कपीस पे कोई फोर्स नहीं लगता है. Hardness and toughness of workpiece don't create problems in the machining operation. आपको हार्डनेस और टफनेस आपको वर्कपीस पे आपको कोई क्रिएट नहीं करता है. Disadvantage and limitation. The major disadvantage of this process are that only electrically conducting materials can be machined. इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल ही इसमें आपको मशीन किया जा सकता है, क्योंकि वर्कपीस को पॉजिटिव बनाया जाता है तो आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल ही इसमें आपको मशीन किया जा सकता है ना. दिस प्रोसेस इज कॉस्टली, सो रिकमेंडेड फॉर यूज स्पेशल लिमिटेड प्रोसेस. ये आपको वायर कट EDM प्रोसेस, ये दो प्रोसेस आपको यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस और प्रोसेस आपको बता दिया गया है ना. वायर कट EDM का और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का ये आपको क्लियर कर दिया गया. दूसरा, हाउ द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में आपको कैसे मेटल इरोजन होता है उसके बारे में आपको बताया गया. कौन कौन सा प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग एनर्जी है आपको उसके बारे में बताया गया, और क्यों जो है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज किया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको डिटेल से आपको बता दिया गया. ये आपको वायर कट EDM मशीनिंग प्रोसेस है ना. तो पहले आपका मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर उसके बाद जो है फिर शुरू करेंगे. जीरो 41 शिखर, आकाश पवार जी, आशीष जी 7, चंदन शाह जी 8, गौरव जी 16, हिमांशु जी 17, हृदय जी 19, राहुल ठाकुर जी 32, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54,
सर 41 सर। कितना बोल रहे हैं? 41। हाँ 41 हाँ 41 बोल तो दिया शेखर जी, मैं बोल तो दिया। सर ऋषभ आपने नायक, मेरा नाम बोला, नंबर नहीं बोला। हाँ हाँ ऋषभ नायक जी 54, अभिषेक कुमार जी 2, 3 अभिषेक कुमार दुबे जी 2, नहीं सर, आकाश पवार 3। आकाश पवार 3 का मैं बोल तो दिया, हो गया। फिर से मैं अभी दोबारा बोलता हूँ, हिमांशु पुंडूरी जी 18, मैं फिर से दोबारा अभी सबका बोलता हूँ, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक पराशर जी। कार्तिक पराशर जी प्रेजेंट, जैनेश चौहान 22 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडूरी 18 इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे रोल नंबर 2 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक 54 इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट 38 इज प्रेजेंट, राहुल ठाकुर 32 इज प्रेजेंट, हृदय जी 19 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, गौरव जी 16 इज प्रेजेंट, चंदन शाह 8 इज प्रेजेंट, आशीष 7 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट और शेखर जी 41 इज प्रेजेंट, है ना। तो ये सारे प्रेजेंट हैं, सभी का अटेंडेंस जो है आपका बन गया है। तो तीसरा प्रोसेस है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में आप यहां पर आप इसका प्रिंसिपल को समझिए। ये आपको ट्रांसड्यूसर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर होता है, जिसमें पावर सप्लाई करने से आपको लेंथ को बढ़ता और घटता है ना। इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल वाइब्रेशन। ये आपको जो आपको ट्रांसड्यूसर है मैकेनिकल वाइब्रेशन में कंडक्ट हो जाता है। ये आपको कनेक्टिंग बॉडी दिया हुआ है, ये टूल दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एब्रेसिव सैलरी यहाँ पर दिया जाता है और ये वर्कपीस है, ये फिक्चर है, ये वर्क टेबल है। जब जो है यहाँ पर इसमें करंट अप्लाई किया जाता है तो ये ऊपर वाला जो है वाइब्रेट करता है, ये आपको वाइब्रेट करेगा। ये जब वाइब्रेट करेगा तो एब्रेसिव सैलरी आपको यहाँ पे लगा हुआ है, तो एब्रेसिव सैलरी पे इंपैक्ट करेगा, वो आपको वर्कपीस से मटेरियल आपको हटाएगा। यही जो है मेन प्रिंसिपल है आपको अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का। बहुत ही आसान प्रिंसिपल है। आपको जब पावर सप्लाई दिया जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर होता है, ये आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन आपको उसमें आ जाता है, ये आपको पूरा पोर्शन वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करने से, टूल के वाइब्रेट करने से एब्रेसिव सैलरी पे इंपैक्ट पड़ता है, एब्रेसिव सैलरी वर्कपीस पे इंपैक्ट पड़ता है और वहां से मेटल रिमूवल रेट आपको होता है। ये आपको अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस is one of the non-traditional machining process. Working principle of this process resemble the conventional and machine cutting. In this process, abrasive content in celery are driven at a very high velocity against the workpiece by a tool vibrating at a low amplitude and the high frequency, है ना। यही मेन प्रिंसिपल है। आपको एब्रेसिव सैलरी यहाँ पे पास किया जाता है, एब्रेसिव सैलरी पास किया जाता है, टूल का मोशन होता है और वो एब्रेसिव पे इंपैक्ट करता है और वहां से आपको मेटल रिमूवल होता है। ये आपको आसान प्रोसेस है। एम्पलीट्यूड इज केप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 0.07 mm, है ना, एंड फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन 20,000 हर्ट्ज। द वर्कपीस मटेरियल, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है आपको काफी हाई है, इसीलिए इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग जो है ना वो आपको काफी हाई है, इसीलिए इसको अल्ट्रासोनिक मशीनिंग बोलते हैं। द वर्कपीस मटेरियल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द extremely small chip, normally very hard particle. Dust is included in the slurry like Al2O3. Al2O3 स्लरी आपको होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, बोरन कार्बाइड होता है और डायमंड डस्ट होता है। Working principle of USM is same as that of a conventional machining, that is material। हाँ बताइए। ये सैलरी मतलब क्या होता है? एब्रेसिव सैलरी मतलब कि एब्रेसिव तो यहाँ बताया आपको Al2O3 है, सिलिकॉन कार्बाइड है, बोरन क्लोराइड है। इसका मिक्सिंग जो है, मिक्सचर जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए इसको सैलरी बोला जाता है। एब्रेसिव, ये एब्रेसिव जो है ना ये आपको एक तरह से बोल सकते हैं लिक्विड में आपको
ये मिक्सचर है, एब्रेसिव मिक्सचर है, एब्रेसिव मिक्सचर है जो कि ये ओल्ट O3, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड और डायमंड डस्ट का आपको मिक्सचर है ना। इसमें आपको हार्ड पार्टिकल नहीं होता है, ये आपको डायमंड डस्ट होता है। इसमें डायमंड डस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसीलिए इसको एब्रेसिव सैलरी, इसको वहां पर ये पूरे में आपको रहता है, उसी को आपको एब्रेसिव सैलरी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ डस्ट ऑफ द वेरी हार्ड पार्टिकल, it is filled into the machining zone. Abrasive slurry can be recycled with the help of the pump, है ना। ये आपको डस्ट रहता है, इसको एब्रेसिव स्लरी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ द डस्ट ऑफ द वेरी हार्ड पार्टिकल्स, ये आपको वेरी हार्ड पार्टिकल, आपको नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, Al2O3, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड और डायमंड का आपको डस्ट रहता है। Working principle of USM is same that of the conventional machining, that is material workpiece is removed by the continuous abrasive action of the hard particle vibrating in the slurry. Abrasive slurry act as a multi-point cutting tool and does the similar action as a cutting edge, है ना। USM process is indicated in the figure. Details of the process are discussed below. एब्रेसिव स्लरी के बारे में बताया। वर्कपीस जो है आपको हार्ड ब्रिटल मटेरियल कैन बी मशीन बाय द USM. वर्कपीस इज क्लैम्प्ड on the fixture with the setup. Cutting tool for USM does not do the cutting velocity, but it vibrates with the small amplitude and the high frequency. So it is suitable to the name the tool as vibrating tool rather than the cutting tool. The tool is made of the relatively softer material used to vibrate abrasive slurry to cut the workpiece material. The tool is attached to the tool holder by brazing or the mechanical means. यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये कटिंग टूल जो है आपको सॉफ्टर मटेरियल का होता है, जो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। अल्ट्रासोनिक ऑस्किलेटर, this operation uses the high frequency electric current which passes to an electronic oscillator and electronic ultrasonic transducer. The function of the transducer is to convert the electrical energy into mechanical energy, developing vibration into the tool, है ना। अल्ट्रासोनिक ऑस्किलेटर आपको होता है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। दिस इज अल्ट्रासोनिक ऑस्किलेटर, ये वाइब्रेट करता है। जब इस पे आपको पावर सप्लाई देते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगता है। यहाँ पर एब्रेसिव रहता है, जो हार्ड पार्टिकल रहता है, वर्कपीस पे इंपैक्ट करता है और वर्कपीस मटेरियल को हटाता है। यही जो है आपको वर्किंग प्रिंसिपल है आपको अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का। Feed mechanism, tool is fed to the machining zone of the workpiece. The tool is shaped as same to the cavity to be produced into the workpiece. The tool is fed to the machining area. The feed rate is maintained equal to the rate of the enlargement of the cavity to be produced. Application of the USM, the process is generally applied for machining of the hard and brittle materials like the cartridge, glass, ceramic, precious stone, titanium, etc. है ना। काफी हार्ड मटेरियल का, ब्रिटल मटेरियल का आपको यहाँ पर जो है आपको कटिंग होता है। इट इज यूज्ड फॉर टूल मेकिंग, पंच एंड डाई मेकिंग बनाने में आपको काम आता है। द वर्कपीस मटेरियल इज नॉर्मली रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द वेरी हार्ड चिप्स, सो जनरेटेड सरफेस क्वालिटी इज एक्सट्रीमली गुड। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर द सेवरल मशीनिंग ऑपरेशन, टर्निंग, ग्राइंडिंग, टीपेनिंग में आपको यूज होता है ना। एप्लीकेशंस आपको बताया हुआ है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पर आपको दिया हुआ है। Advantage of the USM are the listed below. Its main advantage is the workpiece after machining any residual stress, है ना। ये इसके any residual stress से आपको फ्री रहता है। As to the concentrated force or heat is subject to heat during the machining process. Extremely hard and brittle materials can be machined. Hard और brittle materials इसमें आपको मशीन किया जा सकता है। Their machining is very difficult by the वो वहाँ पे कन्वेंशनल मेथड नहीं बनाया सकता है। यहाँ पर आपको मशीन है ना। वेरी गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन्ड हियर। ऑपरेशनल कॉस्ट इज लो हियर। The process is the environment friendly, it is noiseless and no chemical and heating is used. Disadvantage of the USM are below.
The process of the USM has a disadvantage and limitations are described. जब फोन आया था जिस दिन हुआ था दुनिया बुखार आ गया था है ना। Its metal removal rate is very low. It can be used for the large machining cavity. Its initial setup cost and cost of the tool is higher. High frequency tool replacement is required as the tool wear takes place in the operation. Not recommended for the soft ductile material due to the ductility. Power consumption is the quite high. Salary may be replaced frequently. ये आपको disadvantage है. तो आपको 3 प्रोसेस आज मैंने आपको करवा दिया, ये काफी है. इससे ज्यादा पहले फिगर को समझिए, फिगर को बनाइए और फिगर को प्रोसेस डिटेल प्रोसेस पैरामीटर को एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना. तो ये आपको 3 प्रोसेस आपको बताया गया जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस है और वायर कट ईडीएम प्रोसेस है और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है. ये आपको फिगर को फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ये आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का प्रोसेस का फिगर है. बेस मेटल यहां पे है ना, और ये वर्कपीस टर्मिनल है. ये कंटेनर है, कंटेनर में आपको डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन रहेगा, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड. और ये आपको टूल है, ये रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म है. ये यहाँ पे गियर बॉक्स है, ये स्विच है, यहाँ पे डायरेक्ट करंट आपको सप्लाई किया जाता है ना. ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस है. यहाँ पर आपको जो मेटल रिमूविंग प्रोसेस है ये यहाँ को आपको बताया गया है. टूल है, ये पॉजिटिव वर्कपीस है और यहाँ पे आयोनाइड डाइलेक्ट्रिक देते हैं. तो आपको स्पार्क होता है, स्पार्क होने की वजह से यहाँ पर जो है मेटल आपको रिमूव करता है. यही आपको मेन जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का यही. टूल नेगेटिव है, वर्कपीस पॉजिटिव है, दोनों के बीच में स्पार्क होगा. स्पार्क होने से आपको मटेरियल यहां से रिमूव करेगा, है ना. ये आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस है. फिगर को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना. प्रोसेस डिटेल्स आपको यहां पर सारा बताया हुआ है ना. सभी के बारे में, बेस एंड कंटेनर के बारे में, टूल के बारे में, डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन के बारे में, पावर सप्लाई के बारे में, टूल फीड मैकेनिज्म के बारे में, वर्कपीस एंड मशीनिंग ज्योमेट्री के बारे में ये आपको बताया हुआ है. प्रोसेस डिटेल कंप्लीट आपको बताया हुआ है. एप्लीकेशंस आपको बताया हुआ है, कहां कहां एप्लीकेशन अप्लाई होगा, एडवांटेज का क्या है वो आपको बताया हुआ है, डिसएडवांटेज क्या है वो आपको बताया हुआ है. वायर कट ईडीएम का आपको ये फिगर है, ये वायर है, ये वर्कपीस है, ये कंटिन्यूसली फिट वायर है, ये डाइलेक्ट्रिक स्प्रे यहां पर यूज किया जाता है. ये प्रोसेस डिटेल्स आपको यहां पर आपको बताया गया है. टूल डिटेल्स आपको यहां पर बताया गया है. जो गैप रहेगा, वायर डायमीटर कितना रहेगा, इसके बारे में आपको बताया गया है. वायर डायमीटर किसका कितना रहेगा, ये ऑफ मेटल ऑफ द वायर आपको किस किस मटेरियल का होगा, ब्रास का होगा, कॉपर का होगा और टंगस्टन का. एनी सुटेबल मटेरियल ऑफ द ईडीएम टूल का आपको वायर जो है आपको यहाँ पर यूज किया जाएगा. ये यहाँ पर आपको वायर का बताया गया है. प्रोसेस डिटेल आपको बताया गया है ना. डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड एंड स्प्रे मैकेनिज्म होगा, टूल फीड मैकेनिज्म होगा, है ना. टूल को फिट करने का आपको फीडिंग सिस्टम कैसे होगा उसके बारे में आपको बताया गया है. डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कंटेनर यहाँ पे रहता है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के बारे में आपको बताया गया है. एप्लीकेशंस ऑफ द वायर ईडीएम आपको बताया गया है. एडवांटेज ऑफ द वायर कट ईडीएम का बताया गया है. वो उसका नहीं है, उसको कोई पता नहीं है. डिसएडवांटेज या लिमिटेशन वायर कट ईडीएम का आपको बताया गया है. अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ये 20,000 हर्ट्ज पे आपको वाइब्रेट करता है ना, और एम्पलीट्यूड इतना रहता है, इसलिए इसको अल्ट्रासोनिक मशीनिंग कहते हैं. इसमें जो सैलरी होगा, एब्रेसिव सैलरी, वो Al2O3 सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड और डायमंड डस्ट होगा.
है ना। वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पर आपको बताया गया है। ये आपको जब पावर सप्लाई होता है तो ये आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन करता है, ये आपको मैकेनिकली वाइब्रेट करेगा, आपको टूल मोशन आपको इस तरह का होगा, और टूल जो है इंपैक्ट करेगा एब्रेसिव सैलरी पे, और एब्रेसिव सैलरी जो है एब्रेसिव सैलरी आपको वर्कपीस को आपको मेटल रिमूव करेगा। ये आपको प्रोसेस डिटेल्स आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है। प्रोसेस डिटेल्स में एब्रेसिव सैलरी के बारे में बताया गया है, वर्कपीस के बारे में बताया गया है, कटिंग टूल के बारे में बताया गया है, अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर के बारे में बताया गया है, फीड मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है ना। तो प्रोसेस डिटेल्स आपको क्लियर कर दिया गया है। एप्लीकेशंस यहां पर आपको बता दिया गया है। एडवांटेजेस ऑफ द यूएसएम ये बता दिया गया है। डिसएडवांटेज ऑफ द यूएसएम ये आपको बता दिया गया है ना। तो ये 3 प्रोसेस आज क्लियर करते हैं, बात की कल करेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। कल एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में बताया हुआ था, तो 3 1 4 प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। किसी तरह का किसी को कोई डाउट हो वो कभी भी आप जो है फोन करके क्लियर कर सकते हैं, है ना। ये इसका आपको लेक्चर नोट भेज दिया गया है, लेक्चर नोट भेज दिया गया है। और ये मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस है, यूनिट 4 5 6 आपको मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस है, जिसमें कि आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग पढ़ना है, वाटर जेट मशीनिंग पढ़ना है, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग पढ़ना है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पढ़ना है। उसके बारे में आपको बता दिया मैंने, एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में बता दिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग पढ़ना है, वो उसके बारे में बता दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पढ़ना है, लेजर बीम मशीनिंग पढ़ना है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग पढ़ना है ना। तो यही आपका 3 यूनिट का आपका यही सिलेबस है, और इसके बारे में प्रोसेस के बारे में आपको जानना है तो, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक